I'll be taking your sessions of React going forward. Uh, yes. All right. Yeah, a lot of people says, welcome back. I think you have had been in some of my previous sessions. Okay, great, great, great. I'll be taking your sessions of React, and together we're gonna have fun. We'll try to build things and learn React. Okay. And someone just asked me one question. I'll start with that question. Okay, how do I become best in React is what he asks. The answer to that is very simple. Okay. Like how you basically become perfect at any of the skill. Uh, like when you're driving, when you're learning how to drive, day one, you'll be anxious, you'll not be that perfect. But then you continue driving. You don't stop because you felt, day one it was high. It was very difficult to learn how to drive. So what do? Day two, you go back again and you drive the car. Day three, you drive the car again. Uh, you fail also, right? People tend to fail. So when I was learning car, I had accidents also, on a minor ones, but I did had accidents. People fail. That's okay. So your code will not work. Okay. So you'll be stuck also. That's also fine. So just know that it's a normal thing, and you that will also pass. Okay. So do not stop coding at any cost. Okay. That's the only thing. Okay. um, थोड़ा धीरे पढ़ाइएगा, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया. All right. चलो, let's begin. First 15-minute Nupal sir, everybody is missing Nupal sir. He will not be attending today's session. Probably he'll come in some other session. Okay. So he had some really urgent meeting, so he couldn't join us. But we'll tell him that a lot of our students were missing him. Uh, okay. Chalo, let's begin. All right, everybody can see my screen if I'm not wrong. Okay, let me also open a browser here quickly. Wait, I'll keep chat box open like in minimized mode sometime. Let me keep this here, and okay. All right, we'll start. Okay, nothing fancy, just an HTML file. I'll create. Okay, I'll create a JavaScript file also for a second. Also, let me start with something like this. This one. Put that inside example one. Okay, then we'll put that inside. So index.js. Okay. So how do you write HTML? So you've learned HTML, correct? So you have already learned HTML, right? I find very hard, React. What do I do? What do I do? Okay. Chalo. Whatever happened in the past. You might have felt hard. That doesn't make it easy. I'm not saying a React is going to be easy. So, as I said, the only thing is I have certain expectations from you, then you can also have certain expectations from me. What expectations do I have from you? Well, I expect that you complete all the assignments given to you. If you do, I will provide additional assignments also that will help enhance your learning. But again, that will happen when you complete all the current assignments. Okay.
based on that, I'll give some optional really amazing assignments, and together we will build a lot of things, and that's how we are gonna learn. Okay, but again, there are certain expectations. I expect a lot of efforts from your end. Um, Most of the time, focus completely on React. A lot of things are gonna run parallelly. I am not gonna tell you how you're gonna manage. That is something that you'll have to figure out. Okay. Um, but if you focus on this, if you put your time, effort, let's say for the next 3 weeks, okay, all I'm asking is 3 weeks, 3 weeks of efforts, and you will learn three. Okay, but a genuine, honest effort from your end. I'll also do put efforts from my end. That's why uh, I basically have decided to take up PSCs also every week. Okay, but again, I'll put in efforts. I'm expecting that you'll also put in efforts. Then we will definitely learn. The next 3 weeks, okay? Forget everything. सुबह उठने से लेके रात सोने तक, remember only one thing, React. We will learn it. Okay, great. So let's continue. It is too low. Okay, well, let's start. Is it too low? I mean, I'll just check if the setting. Can you hear me now? I'll keep the mic a little closer. Oh, okay. Great, great. Hmm. Chalo, let's start. Before we begin, um, classical dances, maybe. Yeah, or randomly I'm using classical dances, but हाँ, ठीक है. India में there are certain classical dances. सबको पता है what classical dances are, right? Kuchipudi, Bharatanatyam, etc. Kathak, etc. So those are different ways of dancing, right? Different classical dances. So one way is Kuchipudi, one way is Bharatanatyam, etc. Similarly, okay, also one more thing, I forgot. Let's do one thing. Let's keep the notes also open. Okay, I generally like to keep the notes open. Not this, not this, not this. Okay, let me just open the notes also. If anybody has link, uh, it's fine. I think I found the notes. Great. So I'll just keep this open for reference purposes, okay? So that we have an idea what we've covered, what we haven't covered, etc. Yep. Someone has already shared it. Thank you. Okay. Chalo, let's start. First one is declarative versus imperative programming. Okay. यहाँ पे we will write notes as well. Declarative versus imperative programming. Okay. Let's take this. Put it here. आज का first topic. आप HTML लिखते हो? You write HTML, right? कुछ इस तरह लिखते हो, करेक्ट? तो एज अ डेवलपर मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखाना है स्क्रीन पे, तो व्हाट डू आई डू? आई डिक्लेयर इट. मैं बोलूंगा कि एक H1 होना चाहिए, टेक्स्ट ऑफ टाइप हेडिंग 1, जिसमें टेक्स्ट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड. दिस इज वन वे ऑफ प्रोग्रामिंग. क्या इससे ज्यादा क्या जूम करूं? एनीवेज, so this is one way of writing program. That's it. How do you write it? You are writing it in a declarative fashion. इसको ना declarative fashion बोलते हैं इंग्लिश में. मतलब क्या है? मेरे को एक hello world दिखाना है H1 के अंदर, and I declared the same thing, and वो दिख रहा है वहां पे hello world. That's it. Right? So this kind of
वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, एक तरीका है, राइट, टू राइट अ प्रोग्राम. जैसे कुचिपुड़ी इज वन वे ऑफ डांस, भरतनाट्यम इज अनदर वे ऑफ डांस. सिमिलरली ये एक तरीका है टू राइट प्रोग्राम. दिस वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. HTML is one such example. वो declarative way approach, the people who designed HTML, जिन लोगों ने HTML बनाया था, so they decided to take this approach के ये डिक्लेरेटिव फैशन में लिखेंगे. इसमें जो भी कोड लिखेगा, कोई भी डेवलपर कोड लिखेगा, तो दे will use this approach of declarative way of writing code. Okay, so JavaScript, how does it work? Let's see. सेम चीज अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट से करनी है, तो फर्स्ट आई विल राइट ईच स्टेप. एक एलिमेंट क्रिएट करना h1 करके, उसको ना टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड, एंड क्या, देन उस यू हैव टू बेसिकली append it to body. Then when you refresh, it's not showing. तो अच्छा, it's not connected, that's it. यहाँ पे मैंने कनेक्ट ही नहीं किया ना. Script, let's connect this index.js. यहाँ आने के बाद सेम थिंग, document.body.append header, that's it. 3 स्टेप में हमने, ईच स्टेप में एक एक चीज पर्टिकुलरली फ्रॉम स्क्रैच वी डू. वी आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ वी बिल्ड थिंग्स हियर. यहाँ पे वी जस्ट डिक्लेयर इट कि ये h1 होना चाहिए, उसमें ना टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड होना चाहिए. बट imperative way of writing program, which is JavaScript, works differently. इसमें आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते हो, फ्रॉम स्क्रैच यू राइट एवरीथिंग. आप यहाँ पे डिस्क्राइब किया लाइन 1 में कि आपको एक h1 क्रिएट करना है. आपने लाइन नंबर 2 में डिस्क्राइब किया कि उसका टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड होना चाहिए. देन आपने लाइन नंबर 3 पे डिस्क्राइब किया कि वो गो कैच होल्ड ऑफ दैट बॉडी, वो डॉक्यूमेंट बॉडी को पकड़ना, उसके अंदर ये हेडर को यू नो अंदर डाल देना, गो अपेंड इट, अटैच कर देना ये हेडर को. दैट इज व्हेन यू आर एबल टू सी द सेम हेलो वर्ल्ड. दिस वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, ये एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का, जावास्क्रिप्ट में वही फॉलो करता है. दिस वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज बेसिकली imperative way of writing program. Okay, someone says not able to hear, my voice is not very low, is that the case? No, it's very clear, it seems. You may want to check your what do you say, speaker. Okay, great. तो this is what we have discussed. ये सारा explanation English में जो है, it tells the same thing, the difference between imperative and declarative way of writing program. एक प्रोग्राम प्रोग्रामिंग के इट्स अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. आप कैसे प्रोग्राम लिखते हो. सो इंपेरेटिव वे में टू डिस्क्राइब हाउ अ प्रोग्राम ऑपरेट, डिक्लेरेटिव वे में आप जस्ट डिजायर्ड आउटकम लिखते हो. ओके, perfect. Now, why did I say this? React, which is what you are going to learn going forward, right, is declarative way of writing program. JavaScript, which you have learned till now, is imperative way of writing program. Make sense? HTML, it was again declarative way of writing program. सारे languages ही है ना. So the way in which you write program, basically, different
like paradigms, you call it इंग्लिश में paradigm बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में I'm not sure how to translate paradigm, but a way of writing code. Okay, इतना समझ जाना बस, way of writing code. How do you write code? So तरीका कोड लिखने का, इम्पेरेटिव वे होता है, डिक्लेरेटिव वे होता है। डिक्लेरेटिव वे में आप डिस्क्राइब करते हो, बेसिकली डायरेक्टली आप मेंशन कर देते हो कि मेरे को एक H1 चाहिए, मैं हेलो वर्ल्ड लिखना चाहिए। डिक्लेरेटिव वे में ऐसे करोगे, इंपेरेटिव वे में आप ईच स्टेप डिस्क्राइब करोगे कि उसको कैसे अप्रोच करना है। तो आप ना स्टेप 1 में लिखा कि मेरे को एक H1 क्रिएट करके दो, उसका टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड होना चाहिए, एंड देन go and fetch the body, append it to that body. Okay, all right. So let's move on. Okay, next चीज डिस्कस करते हैं, JavaScript DOM, React versus React DOM. Okay, chalo. Some questions I see. What is the difference between React? We will discuss it. अभी तो शुरू किया है, 20 minutes के लिए ना. So we'll discuss all the things. Okay. I heard your question, Santosh Kumar. We will discuss it. Hmm. Sure. So, second topic for the day, JavaScript and DOM versus React and React DOM. All right. So that's second topic for the day. All right. So we will create one more example. Let's call it example 2. We'll close all the things. यहाँ पे example 2 पे to create index.html, we'll close the previous code. Yeah, we will open this live server here, and let's open this. We'll just call it example 2. You have script tag, JavaScript भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे for better visibility. मेरे को एक फाइल स्विच करना नहीं, I don't want to do that because मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, so I'll stick to one file only. Okay, script भी यहीं पे लिखूंगा, I'll write it over here itself. Okay, fine. Let's continue. I'll create a div. एक div create किया मैंने, उसको ना एक आईडी दे दी मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये div का आईडी मैं दूंगा रूट। इसका ये मतलब नहीं कि यू कैन नॉट नेम इट एनीथिंग, नेम वॉट एवर यू फील लाइक। इसका मैंने नाम रख दिया रूट, ये div का। ठीक है, अगर मेरे को ये जावास्क्रिप्ट में पिक करना है तो हाउ डू आई डू, रूट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। करेक्ट, ऐसे ही कहते हैं ना, यू हैव लर्नड इट राइट। ओके, आई put this for the timing ऐसे मैं great. Hmm. Now I want to create one heading, hello world, header dot text content hello world, root element dot append header. This is what I'll do, and now when I refresh I see that hello world over there. Okay, so step number 1, you got hold of that DOM node. आपने ये DOM node को पकड़ लिया वहां से जाके, by its ID आपने कैच कर लिया, एंड देन आपने बोला कि let me create a h1 tag, उसका टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड होना चाहिए, एंड यू आर अपेंडिंग इट विद इन दिस, इसके अंदर वो h1 डाल दिया जिसमें हेलो वर्ल्ड आएगा। करेक्ट, ऑल राइट, दिस हाउ यू वुड डू। नाउ रिएक्ट में हाउ डू यू राइट कोड, विल सी दैट। ओके, same cheese if I have to do in React, how do I do? Okay, we'll do that. Let's say example 3. Okay,
index.html, and here also I'll create example 3. हम यहाँ पे पहले सिंटैक्स डिस्कस करेंगे, ओके, द वे इन विच यू राइट कोड इन रिएक्ट, वैसे डिस्कस करेंगे. Then we will again dive deep into what is React, why React, ये सारी चीजें we will discuss. But first we'll start with syntaxes and all. Again, in order to not divert from the original topic, what I'll do is I'll stick to topic only. Okay, if I see some queries with respect to off topic, it's not that your queries are bad. आपकी क्वेरीज अच्छे हैं, डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. विल डिस्कस इट व्हेन द टाइम कम्स. हम रेलेवेंट सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सो पार्डन मी इन एडवांस for the next two 7 sessions or 12 sessions what I take. I'll answer your queries, but when it's right time. Okay, तो अगर कुछ questions मैंने मिस किए तो there is a reason for it. Trust the process. हम सारी चीजें we will cover definitely. Okay, great. So we'll continue. Okay, यहाँ पे भी we will have a diff with ID root. Okay, so यहाँ पे भी we will catch hold of that root element. Okay, now how do I write in React? अभी React में मेरे को एक h1 create करना है. How do I do that? Let's see. So if you see over here, there are certain script tags, additional ones. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द स्निपेट्स जो आपके नोट्स में है. सो ये आपको एडिशनल स्क्रिप्ट टैग्स दिखाई देंगे, करेक्ट, जिसका कुछ सोर्स है. लेट मी ओपन दिस. ओके, मैं एक बार ओपन करके बता देता हूँ. ये वाला भी ओपन करके बता देता हूँ. इसको भी ओपन कर लेते हैं. ओके, समझ में आ गया ना सारा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कोड. ऑल राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड दिस? ओके, तो ये क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, इतना डेप्थ में नहीं जाने का. आई विल टेल यू. अभी फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में हाउ डू यू राइट को लाइक let's create one index.html, and this is how you basically do script tag में source add करते हो. यहाँ पे you basically add index.js and some code you will write over here, whatever. Okay, what happened? Okay, तो here you connect it, right? आपने अपने index.js को अपने html से connect किया basically, right? तो ये जब चलेगा इट हैज एक्सेस टू, इसको index.js का एक्सेस है. मतलब index.js में जितना भी कोड लिखेगा वो रन कर पाएगा यहाँ पे. करेक्ट? एवरीबॉडी विथ मी ऑन दिस? यस? हाँ, ठीक है. तो आपके पास ये index.js में जितना भी कोड लिखा हुआ होगा उसका एक्सेस है यहाँ index.html में. सिमिलरली ये जो when you do this, when you copy this and put it, okay, so इसको CDN लिंक्स बोलते हैं बाय द वे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक्स. इफ somebody is interested, जिसको ना डेप्थ में जानने का आदत है, तो दे कैन लुक इनटू इट. CDN और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक्स, व्हाट दैट इज. तो you see here I added two more scripts. ये तो अपना लोकल स्क्रिप्ट है. यहाँ पे मैंने दो और स्क्रिप्ट्स ऐड कर दिए. ओके, सो these, let me annotate. ये इंटरनेट है. ओके, इमेजिन के वो इंटरनेट है. ओके, दिस बॉक्स, राइट, जहां पे
कुछ कोड मैंने पब्लिश कर रखा है। ओके, यहाँ पे एक और कोड मैंने पब्लिश कर रखा है। रिएक्ट वालों ने ये कोड्स पब्लिश कर रखे हैं। रिएक्ट का कुछ जावास्क्रिप्ट कोड, कुछ कोड पब्लिश कर रखा है। ओके, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोडक्शन डॉट मिन डॉट जेएस लिखा हुआ है, राइट? सो हियर वेयर इज शेप्स। शेप्स नहीं है क्या? शेप 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 शेप। फाइन, आई विल जस्ट स्टिक विद पेन ओनली देन। ओ अच्छा, इधर ही है। ग्रेट। सो this react.production.mint.js, react dom, तो इट्स नथिंग बट, ये कुछ नहीं है, these are also javascript code only. Okay, so these are codes that exist in remote server. आप you are basically pointing it to those कि जैसे आपने लोकल में जितना भी कोड है, यू हैव एक्सेस टू इट नाउ। आपके ये HTML फाइल के पास ये जो पब्लिश्ड कोड है ना रिएक्ट का, सो ये रिएक्ट का कोड है, ओपन सोर्स कोड। लाइक ये रिएक्ट डॉम का कोड है। नाउ योर HTML, now this file has access to both react and react dom codes. That's it. जैसे आप जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स, जैसे आप HTML में कनेक्ट करते हो ना इंडेक्स डॉट जेएस करके, वैसे ही आपने रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी कनेक्ट कर दिया अभी। दैट्स इट। हाँ, सिमिलर टू हाउ यू ऐड इमेज लिंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना सिंपल है बस, और कुछ नहीं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। हमने रिएक्ट लाइब्रेरी ऐड कर रखा है, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी ऐड कर रखा है, मतलब अब मैं रिएक्ट अपने इस फाइल में यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज रिएक्ट हियर नाउ बिकॉज मैंने दोनों चीजें ऐड कर दी है यहाँ पे। ओके, बट अगेन पहले से एक स्पॉयलर्स दे देता हूँ। दिस इज नॉट हाउ यू वुड बिल्ड प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन। ओके, शुरुआत में वी विल यूज दिस फॉर सम टाइम till we get habituated to it. Going forward, we'll see some good production based, just the code that generally goes in production. We'll see that. But हाँ, it works initially, ये भी चलेगा। Okay, तो see, अभी if I do react dot create element, okay, I can do that. React dot create element h1, okay, there's something called null, and वहां पे टेक्स्ट कंटेंट हेलो वर्ल्ड करके दिख रहा है। ओके, अगर इफ आई डोंट हैव दी सीडीएंस, पहले तो जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो करेगा। ओके, स्टेटिंग के, सो इफ आई रन दिस नाउ, एग्जांपल 3 को रन कर रहा हूँ अभी। लेट मी क्लोज दिस। तो वो टैब में दिख ही नहीं रहा है ना, तो लेट्स स्टिक टू 3। तो आपको टाइटल वहां पे प्रॉपरली दिखेगा 3। हाँ, सो यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग व्हेन यू ओपन कंसोल। यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। उसको पता ही नहीं है कि रिएक्ट क्या चीज है बिकॉज यू कमेंटेड दिस आउट। बट जब हम ये सीडीएन लिंक्स भी ऐड कर देते हैं, इट डजंट थ्रो एन एरर। अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है बट हियर एरर भी नहीं आ रहा है। ओके, ऑलराइट। सो यू हैव एक्सेस टू रिएक्ट लाइब्रेरी नाउ एंड रिएक्ट यूज करके दिस इज हाउ यू क्रिएट एन एलिमेंट। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके जेएस डॉम पे हमने एलिमेंट्स क्रिएट किए, उसी तरह रिएक्ट में यू यूज रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सी द सिंटैक्स, रिएक्ट डॉट क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की जगह रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसमें 3 चीजें दिख रही है। वन, यहाँ पे मैंने सेकंड में नल लिख दिया था यहाँ पे, करेक्ट। एंड एक और चीज है थर्ड आर्ग्यूमेंट। 3 आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, ये मेथड है। मतलब आप समझो रिएक्ट कुछ इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है। इट्स एन ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट, इमेजिन।
इट दिस वे, जिसमें ना रिएक्ट लाइब्रेरी ना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे मेथड्स प्रॉपर्टीज सब है। क्रिएट एलिमेंट एक है ना मेथड है, एंड कुछ और मेथड्स भी होंगे, है ना। अरे रेंडर एक मेथड हो गया, रेंडर करके कुछ, आई डोंट नो व्हाट रेंडर इज, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट ऐसे यू हैव मल्टीपल मेथड्स। जैसे ऑब्जेक्ट में मेथड्स होते हैं ना, वैसे एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी, राइट। कोड है और कुछ नहीं, लाइब्रेरी इज नथिंग बट कोड दैट यू कैन टेक। फॉर एग्जाम्पल, जनरली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लाइब्रेरी? जहाँ पे बुक्स होते हैं, यू कैन बोरो द बुक्स फ्रॉम देयर, नहीं है राइट? एक जगह जहाँ पे बुक्स होते हैं, यू गो एंड बोरो बुक्स फ्रॉम देयर, दैट्स व्हाट अ लाइब्रेरी इज। कोडिंग में भी इट्स द सेम थिंग। एक जगह है जहां से आप कोड बोरो कर सकते हैं। किसी और ने लिख रखा था कोड, आपने उसके पास से बोरो कर लिया। कोई और वहां पे बुक्स रखता है, तो आप बोरो कर लेते हो, राइट? इट्स नॉट योर बुक, बट आप बोरो कर सकते हो, आपको वो एक्सेस है। सिमिलरली लाइब्रेरी ऑल्सो इज द सेम। किसी और ने वहां पे कोड लिखा, बट आप स्टिल एक्सेस कर सकते हो। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? टू अंडरस्टैंड दैट, आई पुट इट सिंपल। कैन समबडी, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, लेट्स से 10,000 years ago क्या हुआ था? कोई एक इंसिडेंट बता सकता है? 10,000 years ago क्या हुआ था? कोई एक इंसिडेंट बता सकता है? नो, नॉट एग्जैक्टली आई से, लाइक मेट्रोइड क्रैश, वॉर, वॉल्केनो वॉर कहाँ से होगा तू? कोई परफेक्ट, आई मीन यू कैन नॉट से दैट फॉर श्योर। लेट्स से 10,000 नहीं, 1 लाख, 10 लाख लिख लियो। ओके, लेट्स गो बियॉन्ड 10,000, तो फिर भी लोग बोल देते हैं चलो 10 लाख years ago क्या हुआ था, कैन somebody से? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, राइट? द मोमेंट लिटरेचर केम, पीपल वेर एबल टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, एंड उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि 1,000 years ago क्या क्या चीजें हुई थी। पीपल डॉक्यूमेंटेड इट, लिटरेचर की वजह से, लिखना पढ़ने की वजह से, people were able to retain those things, people were able to have access to it। लिटरेचर की वजह से ये सब हुआ, राइट? अभी एवरी टाइम लोगों को स्क्रैच से नहीं शुरू करना पड़ता, करेक्ट? अभी कार क्या है सबको पता है। अभी फ्यूचर में जो कार बनेगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार के मॉडल पे अपडेटेड वर्जन बनेगा। वो फिर से वापस बुलक कार्ट यूज नहीं करेगा, करेक्ट? उसको फिर से वापस फ्रॉम स्क्रैच नहीं जाना पड़ता कि हम टायर बनाएंगे, फिर उसमें सामने हल लगाएंगे, हम बुल्स को बुला के लगाएंगे। नो, नॉलेज लिटरेचर का फायदा यही है कि आगे वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम स्क्रैच शुरू नहीं करती। दे हैव एन abundant नॉलेज, दे बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, करेक्ट? Now, that's actually very interesting thing about now. I've recently, एक lecture देख रहा था, and uh, that speaker was talking about it, how literature has shaped up to today's world, and I was very amazed by this example that he has given. Something very basic, but you don't put a lot of thought to it, right? ज्यादा सोचते नहीं है, बट जिसने भी ये सारी चीजें शुरू की, तो थिंक अबाउट इट, द काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट वी हैव टू पे देम, जिसकी वजह से हमें हर चीज स्क्रैच से शुरू नहीं करनी पड़ती। सिमिलरली, आप एक वेब एप्लीकेशन बनाने चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे कंसेप्ट पे आते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनानी पड़ती है, बिकॉज ऑफ समवन एल्स डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प। उसने ना थोड़े फंक्शनैलिटीज बना रखे हैं,
एंड वो फंक्शनैलिटी अगर आपको बनाना पड़ता तो इट वुड हैव टेकन यू 2 days 3 days मे बी इफ यू आर अ एफिशिएंट डेवलपर, देन यू वुड हैव यूज्ड। बट ये लाइब्रेरी की वजह से वो 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 1 year का फ्रॉम स्क्रैच वाला अप्रोच नहीं यूज करना पड़ता, बिकॉज समवन हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन इट, सो ही डिसाइडेड टू ओपन सोर्स इट। उसने डिसाइड किया कि चलो मैंने मेहनत की, आई विल पब्लिश इट, लेट अदर यूटिलाइज माई लाइब्रेरीज। तो आपको वापस फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड नहीं करना पड़ता। अगर आपको फंक्शनैलिटी चाहिए होती है तो यू गो एंड यू टेक दैट code from there and you utilize it. That's what a library is. React is a library, nothing else. कौन सा library? It's a JavaScript library. तो React is built on top of JavaScript. React JavaScript से ही बना है basically. It's a library. Library means थोड़ा सा existing code होता है which helps you build applications faster. अगर आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि 1 week के अंदर मेरे को फुल फ्लेज ट्विटर बनाना है, ट्विटर नाम की चीज नहीं थी, लेट्स से आपको बता दिया कि ट्विटर बनाना है, अब आपको 1 week का डेडलाइन है फॉर एग्जाम्पल, आपको वो प्रोजेक्ट सेट करते करते ही 14 days लग जाएंगे। बट बिकॉज ऑफ रिएक्ट, डे वन से ही यू कैन स्टार्ट कोडिंग ऑन फंक्शनैलिटीज, यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? आपको फ्रॉम स्क्रैच शुरू नहीं करना पड़ रहा बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। आपको डे वन से यू कैन बिल्ड फंक्शनैलिटीज डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन सेटअप और निटी ग्रिटीज। आप बेसिकली कोड अवेलेबल है, इंपोर्ट करोगे, यूटिलाइज करोगे बस। ओके फाइन, नाउ लेट्स कम बैक हियर। ये क्या है? लाइक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आप लिखते हो, वैसे ही रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिख दिया। ओके, क्रिएट एलिमेंट। ओके, ये H1 बेसिकली टैग नेम है, पी टैग, एच टैग, H1 टैग सब बोलते हैं ना, राइट? पी टैग, एच टैग, ऑल ऑफ दिस। तो वो हो गया आर्ग्यूमेंट नंबर 1। प्रॉप्स एंड एट्रीब्यूट्स। देन थर्ड वन हो गया चिल्ड्रन। ये 3 चीजें आपको मेंशन करनी होती है। फर्स्ट वन इज टैग नेम। क्या चाहिए आपको? H1 चाहिए, पी टैग चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में आप वही सब करते हो, राइट? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 लिखा। उसी तरह यहाँ पे यू मेंशन व्हाट इज इट दैट यू नीड। ओके, आई वांट टू क्रिएट अ H1 रिएक्ट एलिमेंट। प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स, ये क्या हो गया? लेट्स से ये H1 को आपने डिसाइड किया कि क्लास नेम भी होना चाहिए ना, इसको इसको ना, लेट्स से आपने डिसाइड किया ये हेडर जो है ना, इसका भी एक आईडी होना चाहिए, उसको हम बुलाएंगे हेडर ही। ये एक एट्रीब्यूट हो गया, राइट? उसका एक प्रॉपर्टी हो गया। तो उस तरह अगर इफ आई वांट टू ऐड अ प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट रखना होगा मेरे को एंड उसमें मेंशन करना होगा कि इसका आईडी हेडर होगा। चिल्ड्रन इज बेसिकली जो पेट में होता है वही बच्चा होता है, राइट? तो इसका बच्चा क्या होगा? ये H1 का बच्चा। जब ये H1 क्रिएट होगा, करेक्ट, तो उसका चिल्ड्रन क्या होगा? हेलो वर्ल्ड। यही तो डिजायर्ड थिंग है, राइट? तो हम वो मेंशन करते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट में कि ये H1 के पेट में हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। ओके, क्रिएट कर दिया आपने, क्रिएशन पार्ट इज डन। अभी ये डॉम में दिखेगा कैसे? यहाँ पे हमारे वेब पेज में हाउ डू वी शो दैट? props is nothing but properties attributes, properties slash attributes. Okay, as simple as that. Now एलिमेंट तो हमने क्रिएट कर दिया, अब इसको डॉम पे, डॉम मतलब ये वेब पेज, राइट? ये डॉम नोड पे यहाँ पे अब कैसे बताएंगे? अपेंड तो हम यूज नहीं करते रिएक्ट में। रिएक्ट का सिंटैक्स में कुछ इस तरह लिखोगे आप, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट
ऐसे लिखोगे रूट एलिमेंट, ये जो रूट एलिमेंट आपने क्रिएट किया है, फर्स्ट तो आप इसको ऐसे लिखोगे, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट रूट एलिमेंट डॉट रेंडर, एंड देन इस एलिमेंट हेडर है ना, इसका नाम क्या रखा था हमने, हेडर रख लेंगे चलो। देन यहाँ पे आप वो हेडर पास करोगे। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आई अंडरस्टैंड इट, बट आपने जब जावास्क्रिप्ट सीखा था तो याद कीजिए आपको वो भी कंफ्यूजिंग ही लगा था, बट विथ प्रैक्टिस इट कम्स। ये भी ऐसे ही है, विथ प्रैक्टिस यूल गेट इट। तो ये अपेंड नहीं यूज करते बिकॉज अपेंड डॉक्यूमेंट एपीआई, जावास्क्रिप्ट वे ऑफ राइटिंग कोड। रिएक्ट में हम लोग कुछ इस तरह कोड करेंगे बेसिकली, नो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की जगह रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके लिखेंगे। Tag name h1, properties attributes you will write as a second argument, third argument will be this children, and if you want to display it onto the DOM, so you will say document dot create root root element ऐसे you will write. So it basically what does it do is, ये वाला स्टेप जो है ना, react dom dot create root and then you pass the root element, तो हम react dom को बता रहे हैं कि मेरे सारे एलिमेंट्स इस रूट नाम के, ये इसका आइडेंटिफिकेशन रूट है, राइट। ये जो डिव है जिसका आईडी रूट है, राइट, वो रूट एलिमेंट होगा, मतलब वो जड़ होगा। जो भी एलिमेंट्स यहाँ अभी हम हमारे पेज में बताएंगे सब इसके अंदर आने चाहिए। सो यू आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग दैट के दिस div with id root is our root element and everything comes inside that. तो that's what you're mentioning and you're saying कि क्या दिखना चाहिए, डॉट अपेंड करके आप वहां पे करते हो ना डॉक्यूमेंट में, डॉट अपेंड हेडर करते हो, इसमें अपेंड नहीं होता, इसमें रेंडर बोलते हैं। एंड क्या रेंडर करना चाहिए, उसमें अपेंड लिखते हैं, यहाँ पे रेंडर लिखते हैं, दोज आर नॉट सेम, विल स्लोली स्लोली डिस्कस, बट हाँ, यहाँ पे रिएक्ट में आप रेंडर लिखोगे और ये हेडर पास करोगे तो वो दिखाई देने लगेगा यहाँ पे। Yes, root element is this div with ID root. You described it over here. Okay. So if you come back to notes, which you can read afterwards, ये जो section है JSDOM React DOM, it basically showcases that same thing, the difference between how you write code in JSDOM and versus how you write code in React DOM. Okay. Huh. So one question is, how do I get access to this? Yeah, you have access to notes. So you can copy paste from notes. You're not going to be judged basically. So you can use this. I mean, it's not a big deal. Use कर सकते हो आप ये directly notes से copy paste कर सकते हो. Okay. Now let's come back here. ये same चीज, whatever I have done over here. Okay. This is valid. ये जो line number 21 पे कोड है, completely valid कोड है. It's not like, it's completely valid. But ये भी valid है, wherein you can not, third argument यहाँ, instead of putting it over here, ये third argument आप यहाँ से निकाल के you can even say children and यहाँ पे लिख सकते हो hello world. It would still work. So this is also valid syntax. तो डायरेक्टली सेकंड आर्ग्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट में ही आप चिल्ड्रन करके जो भी उसके पेट में होना चाहिए, ये H1 के पेट में क्या क्या होना चाहिए, H1 के पेट में H1 का बच्चा होगा ना, इसका H1 का चिल्ड्रन क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई नेवर यूज्ड द वर्ड प्रॉप्स, तो क्यों प्रॉप्स यूज कर रहे हो कोई, मैंने बोला क्या प्रॉप्स, कुछ मैंने तो कुछ नहीं बोला, प्रॉप्स का वर्क क्या है, मैंने कहाँ पे यूज किया, कहीं पे यूज किया मैंने वर्ड प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज यूज किया है ना। तो इसके प्रॉपर्टी से ये H1 का प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका एक आईडी है हेडर, उसके पेट में एक बच्चा है हेलो वर्ल्ड करके।
यू डोंट वांट टू गिव आईडी तो आप निकाल दोगे, ये आईडी निकाल दोगे तो नहीं रहेगा। देन आप नल भी लिख सकते हो, इसको कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को नल लिख सकते हो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। आप ट्राई करना चाहोगे? टेक 3 मिनट्स। ओके, ये हेलो वर्ल्ड की जगह डिस्प्ले समथिंग एल्स। लेट्स से आपको डिस्प्ले करना होगा ये ये लिखना होगा, मेनी माइल्स आई हैव टू गो बिफोर आई एम asleep। ओके, मेनी माइल्स आई हैव टू गो बिफोर आई एम asleep। ये आपको दिखाना पड़ेगा बाय यूजिंग रिएक्ट। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि लिंक चाहिए, लिंक चाहिए। मैं उन्हें बता देता हूँ, नोट्स अगर आप ओपन करोगे लाइव लेक्चर नोट्स तो आपको वहां पे दिखाई देगा। ओके, तो कोड आपको करना होगा, लिंक्स वहां से कॉपी कर लेना। बी जेन्युइन टू योर सेल्फ एंड ट्राई दिस सिंटैक्स। ओके, हेलो वर्ल्ड नहीं दिखाना है हमको, हमको ये टेक्स्ट दिखाना है, मेनी मेल्स आई हैव टू गो बिफोर आई एम asleep। ओके, यूज रिएक्ट। ओके, यहाँ पे आई राइट डाउन एंड कीप इट। All right, 3 minutes and then we will continue. All right. So one of the things people say is that they are not able to find the link. Okay. Can somebody confirm me? Or will you like? Can you see like you are able to open notes, today's live session notes, this session notes. उसमें notes दिखाई दे रहा है? Are you able to see the notes? Okay. So I see a lot of yes over there. All right. हाँ, तो इट सीम्स टू बी वर्किंग फाइन। नोट्स दिख रहा है इट सीम्स। सो या जस्ट अगर आप अपना नोट्स ओपन करोगे तो एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इट्स अवेलेबल ओवर हियर। ये आप नोट से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, नाउ ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट रिएक्ट का सिंटैक्स बारे में बात कर रहे थे, राइट? हमने अपना डिस्कशन शुरू एक सेकेंड, ये जो नोट्स है ना, इसको यहाँ पे ला लेता हूँ। ये ग्लोबल नोट्स है। तो हमने बेसिकली हमारा डिस्कशन शुरू किया था कि आखिर डिक्लेरेटिव प्रोग्राम वे ऑफ राइटिंग कोड, इम्पेरेटिव वे ऑफ राइटिंग कोड क्या होता है। हमने डिस्कस किया, हमने बताया कि क्यों जावास्क्रिप्ट को इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्यों एचटीएमएल को या क्यों रिएक्ट को डिक्लेरेटिव वे ऑफ राइटिंग कोड बोलते हैं। देन वी काइंड ऑफ सॉ के जावास्क्रिप्ट डॉम में how you create versus react DOM यूज करके how do you create element, how do you display it. Okay, now
third part, okay, is just give me a second. हाँ, तो if you still have some queries, I mean Q&A में भी आप पूछ सकते हो. I mean there's a panelist within this session who might answer if you still have some queries basically. Okay, you don't have to raise hand or anything. Simply ask the question. Use Q&A tab. Ask the question there. You'll get a good answer there. So don't worry. ठीक है, चलो let's continue. Let's talk more about this. एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, वट एवर इट इज, कि यू सेड के रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, एंड यू नो हाउ टू यूज रिएक्ट, थोड़ा सा इतना भी मैंने बता दिया कि, बट एक क्वेश्चन और होता है ना कि वाई रिएक्ट, भाई मैं क्यों यूज करूँ रिएक्ट. एक तो हमने डिस्कस किया था कि इट इट्स अ लाइब्रेरी, इट्स contains code which can be used. ओके ठीक है, बट व्हाई शुड आई यूज दैट कोड, ये भी तो क्वेश्चन है ना. मैं यूज क्यों करूं, व्हाई शुड आई यूज दैट कोड. सो रिएक्ट, if all of you guys know, is built by Meta, formerly known as Facebook, right? So there are some amazing engineers in Facebook, obviously. That's why they pay that much. That's why they have that amazing engineers, right? So they wrote code which optimizes a lot. That means that uh, the code works very fast. Okay, it optimizes the performance of your application. ये what generally use होता है, right? Optimizes the performance of application. ऐसे यूज करते हैं, optimizes the performance of application. सिंपल वे में बताता हूँ. Everybody knows basic DSA. या ओ ऑफ एन क्यूब है, एक कोड रन करने के लिए का टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यूब है. एक का ओ ऑफ ऐसे एन है. विच इज बेटर कोड. ओ ऑफ एन. सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? व्हाई? बिकॉज इट्स फास्टर. यस, दैट कोड इज फास्टर. करेक्ट. ओ ऑफ एन फास्टर देन ओ ऑफ एन क्यूब, ऑब्वियसली. तो उसी तरह जो कोड ये फेसबुक के इंजीनियर्स ने लिखा था टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन, इट optimizes a lot. That's why it's faster. Okay, I hope it makes sense. So why React में first thing that you see is performance. You see this performance करके. So one of the problem, one of the pain point, yeah, pain point करके word use करते हैं, right? ये जावास्क्रिप्ट डॉम डायरेक्टली यूज करने की तकलीफ इज दैट कि वो स्लो है बहुत. जेएस डॉम बहुत स्लो है बेसिकली. वो एन वो ऑफ लेट्स से N4 N पावर 5 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है. लाइक छोटी सी चीज अगर आप चेंज भी करोगे डॉम में, राइट, यहाँ पे डॉम में आप जब चेंज करते हो चीज, जनरली स्पीकिंग जावास्क्रिप्ट डॉम डायरेक्टली अगर आप यूज करते हो, राइट, यू यूज जेएस डॉम डायरेक्टली. अब तक तो आपने किया है, राइट? आपने बहुत सारे एप्लीकेशन बिल्ड किए, प्रोजेक्ट बिल्ड किए, तभी तो यहाँ पे आए हो. तो वो बहुत स्लो होता है जावास्क्रिप्ट डॉम. when React is faster, it optimizes a lot. So React से जब आप कोड लिखोगे तो यूआई अपडेट्स जब होंगे, विच इज गोइंग टू बी द केस, जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो यू नो बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. द यूआई गेट्स कीप्स गेटिंग अपडेटेड. लेट्स से आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपका
यूआई कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड वी हैव टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट। उस टाइम पे यू नो रिएक्ट डज अ बेटर जॉब। ओके, इट is faster than JavaScript DOM basically. ओके, सेकेंड थिंग डिक्लेरेटिव वे, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। दिस यू नो tells you how it does that. It basically uh, you know creates a certain algorithm. ये सब चीजें बाद में जाएंगे, nitty-gritties इन डेप्थ बाद में जाएंगे। We'll just first try to understand मैं यूज क्यों करूँ, राइट। क्वेश्चन तो फर्स्ट वही आता है ना आपके दिमाग में कि व्हेन आई से स्टार्ट यूजिंग रिएक्ट, फर्स्ट थिंग यू विल व्हाई शुड आई, राइट। मैं यूज क्यों करूँ? एक तो पॉपुलर है, सारे वेबसाइट्स बन रहे हैं रिएक्ट से, ये सारी चीजें इज वन थिंग। बट बन क्यों रहे हैं सारे वेबसाइट, रिएक्ट यूज क्यों कर रहे हैं, वो भी तो एक क्वेश्चन है, राइट। That's me, right? When you're saying a React is popular, a lot of websites uses React, that's why you use React, is not a good valid point. The question that you need to ask is, why are people using React to build websites? And the answer is because it's faster. Okay. Another pointer that you may want to consider is declarative करके यहाँ पे जो लिखा है ना, right? So why? Like it's ये बोल रहा है कि React ना कोड मोर रीडेबल है, इजी टू डीबग है। वो बोलता है कि रिएक्ट का कोड जो अब आप लिखते हो पढ़ने में एज इन बिगिनर फ्रेंडली है, पढ़ने में बहुत आसानी से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। जावास्क्रिप्ट से भी रिएक्ट कोड इज मोर रीडेबल, दैट्स व्हाट रिएक्ट क्लेम्स। ओके, रिमेंबर, रीडेबल, रिएक्ट कोड इज मोर रीडेबल, रिएक्ट इज बेटर परफॉर्मेंस वाइज। दो चीजें, सिंपल सी चीज है, मोर रीडेबल, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस, मोर रीडेबल। वाई रिएक्ट, दो चीजें याद रखना हमेशा, बेटर परफॉर्मेंस, मोर रीडेबल कोड। ओके, कमिंग बैक टू दिस, परफॉर्मेंस वाइज इट्स बेटर, वो तो ठीक है, बट क्या आपको ये कोड जावास्क्रिप्ट के कोड से बेटर लग रहा है, रीडेबल लिख रहा है? जावास्क्रिप्ट का कोड तो स्टिल बेटर लग रहा है मेरे को यहाँ पे। कंट्रास्टिंग पॉइंट्स ना, अभी तो मैंने बोला कि मोर रीडेबल है, बट ये तो वैसे दिख नहीं रहा है। इफ यू सी साइड बाय साइड भी रख लोगे तो इफ यू सी रिएक्ट का कोड ही कुछ इस तरह है, एंड जावास्क्रिप्ट का कोड, लाइक आई डोंट सी एनी डिफरेंस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये जो मैंने बताया ना, राइट। बाय द वे रिएक्ट, व्हेन आई से रिएक्ट, जब मैं रिएक्ट करके यूज करता हूँ वर्ड, रिएक्ट जो है ना बहुत सारे लाइब्रेरीज का मेल है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, तो उसको ना एक ब्लैंकेट टर्म यूज करते हैं हम लोग रिएक्ट करके। बट यहाँ पे दो लाइब्रेरीज मैंने यूज की है, राइट, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। तो मेरे को अगर रिएक्ट यूज करके कोड लिखना है तो मेरे को ऑलरेडी दो लाइब्रेरी यूज करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। तो इवन दो आई यूज द वर्ड रिएक्ट, वो एक ग्रुप, कंप्लीटली ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज को मैं रिएक्ट बोल रहा हूँ। ओके, सो लेट्स अगेन अंडरस्टैंड रीडेबल, रीडेबल करके जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिसपे मैं आपको फोकस दे रहा हूँ। व्हाट डज दैट मीन, व्हाई रिएक्ट का तो एक बोल दिया बेटर परफॉर्मेंस वाइज, और सेकंड वन बोला इजी टू रीड। व्हाई रिएक्ट मतलब, ओके, इतना तो समझ में आ रहा है। बेटर परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, हम लोग रिएक्ट बेसिकली क्लेम्स दैट, दैट्स वन थिंग, वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन इन फ्यूचर ऑल्सो। बट इजी टू रीड वाला ना अभी डील कर लेते हैं हम लोग इससे, ओके। मैं क्यों रिएक्ट यूज करूं, हाउ इज इट इजी टू रीड, जावास्क्रिप्ट की तरह ही तो लग रहा है, तो व्हाई व्हाई शुड आई रीड? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ओके, हमने बताया कि रिएक्ट
लाइब्रेरीज रहते हैं, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज के। रिएक्ट लाइब्रेरी हो गया, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी हो गया। तो व्हेन आई से रिएक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके। रिएक्ट कोर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी कर रहे हैं। रिएक्ट डॉम बेसिकली ये डॉम में जो हेडर चढ़ा हुआ है ना, हेलो वर्ल्ड वाला, ये रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ये डॉम लाइब्रेरी की वजह से ही ये हेलो वर्ल्ड वहां पे चढ़ पाया है, डॉम पे। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हेडर कुछ इस तरह दिखेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने पे आपको ये H1 आता है, राइट। इसको ना एक बार कंसोल लॉग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखो। कंसोल डॉट लॉग हेडर, ये बेसिक जावा जावास्क्रिप्ट है। आपने उस टाइम पे भी देखा होगा, राइट। तो कैसे दिख रहा है ये, सी दिस, ये डायरेक्टली डॉम नोड को कैच करता है, राइट। ये तो हमें पता ही था। ओके। नाउ यहाँ पे आने के बाद we'll see, ये रिएक्ट एलिमेंट हेडर है। ये वो जावास्क्रिप्ट एलिमेंट हेडर था, ये रिएक्ट एलिमेंट हेडर है। ओके। तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ हेडर, ये क्या वो नोड है? इज इट पॉइंटिंग टू द नोड? जब मैं इस पे हवर कर रहा था, मेरे को पता था कि वो नोड को पॉइंट कर रहा है। क्या ये रिएक्ट एलिमेंट वो नोड को पॉइंट कर रहा है? मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, वो तो कुछ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है। इज इट नॉट इवन पॉइंटिंग टू दिस? राइट। तो रिएक्ट एलिमेंट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो ये रिएक्ट एलिमेंट, ये हेडर वाला ना, इसको अगर आप यहाँ पे लिख लेना, हेडर, ये है वो हेडर, राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना। की करके एक प्रॉपर्टी है, रेफ टाइप H1 करके लिखा हुआ है, प्रॉप्स करके एक अंदर ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, जिसका आईडी हेडर है, एंड चिल्ड्रन हेलो वर्ल्ड है। तो रिएक्ट एलिमेंट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इट्स अ नथिंग एल्स, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है। ओके। सो व्हाई दे यूज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेट करने पे ऑपरेशन स्लो हो जाते हैं। जब आप एक बड़ा सा एप्लीकेशन बनाते हो विच केटर्स टू मिलियंस ऑफ यूजर्स, छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है स्केल पे जब आप एप्लीकेशन बनाते हो, राइट। इवन मिली सेकेंड्स मैटर। तो आप चाहोगे कि आपका वेबसाइट बहुत फास्टर हो, एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल when you optimize it a lot. एंड डॉम, जेएस डॉम डायरेक्टली यूज करके आप जब मैनिपुलेट करोगे चीजें, तो बहुत स्लोली मैनिपुलेट होता है। इट हैज टू, नो, अगर आपको ये हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और मैनिपुलेट करोगे, तो ये कंप्लीटली डॉम डिस्ट्रॉय करके फिर रीबिल्ड करता है, विच टेक्स टाइम। बट अगर आप रिएक्ट एलिमेंट्स यूज करोगे, विच आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है, तो यू नो दैट ऑब्जेक्ट्स आर फास्टर डेटा स्ट्रक्चर। सुना है कभी ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट होते हैं ऐसे करके? फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी तो मैं कोड भी नहीं कर रहा, मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का नहीं है। अच्छा, यू हैवंट हर्ड, ओके। सो इफ यू हैवंट हर्ड, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक अरेज, अरेज तो सुना ही होगा, राइट। अरेज, ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट से नो यू कैन एक्सेस एनीथिंग वेरी फास्ट इन अ फास्टर फैशन, बेसिकली। बिकॉज आपको बस की पता होना चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस, एंड यू विल बी एबल टू मैनिपुलेट इट। तो दैट्स व्हाई वो रिएक्ट की टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग ना डॉम पे डायरेक्टली मैनिपुलेशंस नहीं करेंगे,
इंस्टेड हम लोग ना ये डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट यूज करके नो फेक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। इसीलिए रिएक्ट एलिमेंट्स को सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एक फेक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, एंड वो डायरेक्टली डॉम को मैनिपुलेट करने की जगह ये रिएक्ट एलिमेंट्स को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, तो ये बहुत फास्ट परफॉर्म करेंगे। एंड रिएक्ट डॉम जो है ना, ये रिएक्ट डॉम, ये जो रेंडर मेथड है, यहाँ पे देखो हम लोग रेंडर मेथड में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, हम एक रिएक्ट एलिमेंट पास कर रहे हैं, करेक्ट। हम डॉम एलिमेंट नहीं, रिएक्ट एलिमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड करते हैं, राइट राइट, ये डायरेक्टली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट अपेंड हेडर, सेम चीज है तो है, राइट। रूट एलिमेंट पे आप डायरेक्टली अपेंड कर रहे हो एंड वो हेडर ऐड कर रहे हो एंड इट अपेंड्स इट। तो वही चीज यहाँ पे व्हेन यू आर डूइंग रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉट रेंडर, ये अपेंड ऑपरेशन नहीं है, मैंने बताया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर। जब ये रेंडर की बात कर रहा था मैंने बोला कि ये रेंडर एंड अपेंड दोनों सेम नहीं है। अभी आपको पता चल रहा है कि हेडर जो है ना, ये एक्चुअल एलिमेंट है ही नहीं, ये रिएक्ट एलिमेंट एक्चुअल एलिमेंट तो है ही नहीं, ये बस एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये रेंडर मेथड क्या करता है पता है, ये वो जो रिएक्ट एलिमेंट है ना, उसको जावास्क्रिप्ट डॉम एलिमेंट की तरह कन्वर्ट करता है पहले तो, देन वो डिस्प्ले करता है। वो जावास्क्रिप्ट डॉम एलिमेंट जो कन्वर्ट किया उसको डॉम पे डिस्प्ले करता है। दैट्स व्हाई रेंडर मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम अपेंड मेथड। ये कोड सारी चीजें यहाँ पे हैं, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैं बार बार बाद में फिर रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए अभी क्लियरली फोकस करना पहले, ओके। हम लोग चैट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर चैट पे नहीं, मेरी बातों पे फोकस करो। मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट एपीआई से जब आप बनाते हो तो यू यूज अपेंड एंड यू अपेंड द हेड, वो अटैच हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्ट में जब आप एलिमेंट क्रिएट करते हो, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की तरह नहीं है। रिएक्ट एलिमेंट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो कुछ इस तरह दिख रहा है, राइट। आपने जो हेडर, आपने जो यहाँ पे आईडी लिखा था वो प्रॉप्स के अंदर अवेलेबल है, राइट। आईडी हेडर करके, ये जो चिल्ड्रन लिखा था वो भी अवेलेबल है, एंड ये टाइप H1 करके लिखा हुआ है, राइट। तो ये रिएक्ट एलिमेंट का एक स्ट्रक्चर है, एक बस ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अगर आप डॉम पे रेंडर करोगे, लाइक अगर आप डॉम पे दिखाना चाहोगे, तो लाइक ये तो H1 है ही नहीं ना पहले तो। ये कैसे दिखेगा डॉम पे, ब्राउजर को कैसे समझ में आएगा कि मैं एक H1 में हेलो वर्ल्ड दिखाना चाहता हूँ। तब भी ये रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी काम आता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली रिएक्ट एलिमेंट को कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट एलिमेंट पे, एंड देन वो जावास्क्रिप्ट डॉम एलिमेंट, बेसिकली वो जो कन्वर्ट हो गया ना, वो एलिमेंट को ब्राउजर पे दिखाता है। एक क्वेश्चन होगा आपका कि क्यों, राइट, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, जावास्क्रिप्ट अच्छा खासा तो है, डायरेक्टली अपेंड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों करना है। तो तब मैंने बताया कि ये तो बस छोटा सा एप्लीकेशन है, नन्हा सा, 2 लाइन का, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता होगा, करेक्ट, आई एग्री। बट आप ये एप्लीकेशन बनाते रहोगे जिंदगी भर नहीं, राइट। जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाओगे, मतलब आपके एप्लीकेशन को यूज करने वाले मिलियंस में होंगे। जब मिलियंस में आपके यूजर्स होंगे तो आपका एप्लीकेशन परफॉर्मेंस वाइज बेटर होना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए। एंड जब ये रिएक्ट एलिमेंट पे कुछ चेंजेस करने होंगे तो बहुत इजीली चेंजेस हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर बहुत फास्ट होता है, तो चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं एंड क्विकली। रिएक्ट क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि ओके पहले हेलो वर्ल्ड दिखाना था, अभी यूजर बोल रहा है कि हेलो XYZ दिखाओ या कुछ समथिंग एल्स चेंज, राइट, हेलो कैप। एंड द
द चेंज दैट हैपेंड फ्रॉम वर्ल्ड टू कैप, ये डॉम की तरह कंप्लीटली ये सारा डॉम स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको डिस्ट्रॉय करके रीबिल्ड नहीं करता। इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ। ओके। आप कोड वैसे भी इजीली ये 4 लाइन का ही है, मैं इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ। क्यों फास्टर है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनली रिएक्ट बेसिकली चेक करता है कि ओके इसमें क्या चेंज हुआ। पहले वर्ल्ड हुआ करता था, अभी कैप है। तो मैं क्यों, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द एंटायर थिंग, इट ओनली डिस्ट्रॉयज दिस वर्ल्ड एंड रिप्लेसेस इट विद कैप। तो उसको एफर्ट्स जो मारने थे ना, बहुत कम एफर्ट्स मारने थे, उसको कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच रीबिल्ड नहीं करना था। उसने बस वो जो चेंज है ना, ये रेंडर मेथड बेसिकली वही करता है। ये चेक करता है कि क्या चेंज हुआ है, एंड बेसिकली वो एक ही चीज को रिप्लेस करता है। दैट्स व्हाई दे आर फास्टर। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली अभी समझ में आ जाएगा, इट्स अ प्रोसेस। 2-3 दिन बेसिकली इंट्रोडक्शन को लगते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है इफ यू फोकस ऑन इट। ट्रस्ट में बहुत, आई मीन, एक बार आप जब रिएक्ट कंप्लीटली प्रॉपरली सीख लोगे, तो आप बेसिकली एप्लीकेशन दूसरी चीजों से बनाना पसंद नहीं करोगे। बट थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, फोकस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ अगेन, रिएक्ट इज फास्टर, ठीक है, वो पॉइंट मेरे को समझ में आया। बट रिएक्ट इज इजी टू रीड कर रहा था मैं, बट इजी टू रीड तो अभी भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अगर मैं देखूं जावास्क्रिप्ट कोड, हाँ, हमेशा यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको साइड बाय साइड रख दे की जगह यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड है, यहाँ पे रिएक्ट कोड है, तो साइड बाय साइड रख दिया हम लोगों ने, करेक्ट। बट मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा, राइट। दोनों सेम ही दिख रहे हैं चीज़ें। कंसोल डॉट लॉग ऑफ हेडर भी निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने दोनों सेम ही ओपन कर रखे हैं। क्रेजी। ओके, ठीक है। सो हियर इज आवर कोड, ये भी समझ में आ गया। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस। नाउ व्हेन आई से इजी टू रीड, दिस मोर टू रिएक्ट, ये नहीं, रिएक्ट में और भी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। हम रिएक्ट में ओके, इतनी देर के बाद आई रिवील समथिंग। रिएक्ट में हम लोग इस तरह नहीं लिखते कोड। अगर मेरे को ना H1 दिखाना ही है, तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कोड। मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट हेडर इज इक्वल टू, एक H1 होना चाहिए, ऐसे H1 करके, जिसमें हेलो कैप दिखा देना, एंड आई रेंडर इट। अभी इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? यस, नो? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, राइट? अभी थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना। अभी इतना बकवास वाला कोड नहीं था वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वाला। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को H1 में हेलो कैप दिखाना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट में HTML की तरह ऐसे कोड लिख सकता हूँ, एंड वो कोड दिखाई देगा ब्राउजर पे। ओके, लेट्स सी, काम कर रहा है क्या, कि नहीं करेगा, बट हाँ फिक्स करेंगे तो करेगा, देखते हैं। चलो, फिर मैंने अपना ब्राउजर वापस यहाँ पे लगा लिया, एंड ये वाला है ना एग्जाम्पल 3 वाला। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो काम तो नहीं कर रहा है स्टिल। मैंने तो बोला था काम करेगा, बट काम नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, ऐसे ऐसे करके कुछ दिखा रहा है। अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल में, कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल ले लो, यार, जावास्क्रिप्ट फाइल में अगर आप HTML लिखने की कोशिश करोगे, तो काम करेगा क्या? जावास्क्रिप्ट को तो पता भी नहीं है ना ये दिस इज अ वैलिड कोड। ये काम नहीं करेगा ऑब्वियसली, आपको ना वहाँ पे एरर्स थ्रो करेगा। तो अभी भी वही हो रहा है। ओके, तो फिर मैंने क्यों बोला कि ये काम करेगा? ठीक है, तो ये रिएक्ट है ना,
मैंने क्या बताया था कि लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज है, मतलब इसके बहुत सारे दोस्त हैं, यू नो। वो बोलते हैं ना मूवी में फेमस डायलॉग, तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे कौन है। तो ये रिएक्ट भी उसी टाइप का बंदा है। इसके ना बहुत सारे फ्रेंड्स है, ओके, जिसकी वजह से ये बहुत पावरफुल है। ओके, सो रिएक्ट में एक और लाइब्रेरी भी कॉम्बिनेशन में मिलता है जिसका नाम बेबल है। अब ये बेबल क्या करता है, ओके, विल सी दैट। बट फर्स्ट यहाँ पे आपको कोड लेना होगा। जेएसएक्स एंड बेबल में जाने के बाद अ, ये जो स्क्रिप्ट है ना, इंटीग्रेटिंग बेबल वाला, आपको ये वाला लेना होगा। ये जो सेकंड वाला स्क्रिप्ट है ना, एक और स्क्रिप्ट, इसको ऐड करना होगा। ओके, तो ये एक और दोस्त है रिएक्ट का, बेबल करके। इसको जब हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बेबल करके लिख दिया, देन सडनली आपको ब्राउजर में वो हेलो कैप दिखाई देने लगेगा। तो अभी बताया था ना, ये रिएक्ट के बहुत सारे दोस्त हैं, बेबल भी एक ऐसा ही दोस्त है। तो वो झूठ नहीं बोल रहा था रिएक्ट जब वो बोल रहा था कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे कौन है। इसके पीछे ये बेबल नाम की एक लाइब्रेरी भी है, जो बेसिकली ना, आप कोड एचटीएमएल की तरह लिखने पर भी वो समझ जाती है, वो बट इंटेलिजेंट है। अभी अभी आपके स्क्रिप्ट को ना ये सुपर पावर्स दे दिया इसने, जावास्क्रिप्ट को, जहां पे आप कोड इस तरह लिख रहे हो बट स्टिल आपको ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? बेबल की वजह से। व्हाट इज द यूज ऑफ बेबल इज अ क्वेश्चन आई सी, वहां पे संतोष पूछ रहे हैं। दिस इज द यूज ऑफ बेबल। बेबल बेसिकली कन्वर्ट्स दिस, Babel allows you to write HTML like code in React. In your file, you're able to write HTML like code because of Babel. ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया JSX एंड Babel। JSX भी हमने बात नहीं की, हम बात करेंगे। व्हाट इज Babel फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, Babel क्या कर रहा है बेसिकली? Babel is allowing us to write HTML like code इन जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट फाइल में हम लोग HTML की तरह कोड लिख रहे हैं, एंड बेबल इज अलाउिंग अस टू राइट दैट। अच्छा, कंसोल में वार्निंग दे रहा है उसको एक्सप्लेन, नॉट अ बिग डील, इग्नोर करना, इट्स फाइन, इग्नोर करना फॉर द टाइम में। अगर वो इंपॉर्टेंट होता तो मैं वैसे भी डिस्कस करता। हाँ, कैन वी गिव मल्टीपल एलिमेंट्स इनसाइड बेबल? हाँ, कर सकते हैं, हम करेंगे भी। बट एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज, अभी देखो कंसोल डॉट लॉग ऑफ हेडर करने पे क्या होता है। ये सीधे दिया, अभी भी रिएक्ट एलिमेंट ही है, ये कोई डॉम एलिमेंट नहीं है अभी भी। राइट, जैसे ये डॉम एलिमेंट था, राइट, ये एग्जाम्पल 2 वाला सीन, वो अभी भी डॉम एलिमेंट नहीं है, वो अभी भी रिएक्ट एलिमेंट ही है। ये जो डॉम एलिमेंट है ना, जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे पॉइंट आउट भी कर रहा है कि ये तुम ये डॉम पे है, छेड़खानी कर रहे हो। तो ये जो हेलो कैप है वो डॉम नोड है, राइट। बट ये जो हेडर मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स अ रिएक्ट एलिमेंट। तो ये, सॉरी, शोइंग द रॉन्ग वन, ये रिएक्ट एलिमेंट ही है स्टिल। ओके, सो बेबल बेसिकली, मैंने बोला कि अलाउिंग अस टू राइट एचटीएमएल लाइक कोड, बिकॉज क्या करता है पता है बेबल? इंटरनली ना ये इसको वैसे ही कन्वर्ट करता है। वो बेसिकली रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल हेलो वर्ल्ड, ये इंटरनली यही करता है। बस आपको इजी टू राइट कोड लिखने का मौका मिलता है।
That's all. Okay, let me put my laptop on charge, otherwise it'll die. Pretty interesting, right? How, libraries support each other, how it makes it fun, how it makes it more productive. तो अगेन कमिंग बैक टू दिस, बट मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे पास सबका इलाज है, आई विल डिस्कस दैट आल्सो। कि यहाँ पे जाने के बाद, यू नो मैंने ये नोट्स में एक लिंक ऐड किया है। ठीक है, अभी आपका टास्क यही है कि आपको जाके ये क्लिक करना है, ये लिंक ओपन करना है। ठीक है, बाकी सब क्लोज कर दो बस। ये जो बेबल एंड जेएसएक्स एंड बेबल में है ना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई वुड रिकमेंड दैट के सेशन के बाद एक बार पढ़ भी लेना। एंड ये एक्सप्लोर बेबल ऑनलाइन रेबल पे क्लिक करना, मतलब ये बेबल ट्राई आउट पेज में। एंड यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा बेबल किस तरह चीजें कन्वर्ट करता है। ओके, तो अभी जब आप H1 लिख रहे थे, जिसका आईडी हेडर था, जिसमें टेक्स्ट था क्या, हेलो कैप, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अभी- हाँ, ये क्लासिक है। तो लेट मी एक्सपैंड दिस अ लिटिल बिट। यू सी दिस, बेबल का वो पैदा ही इसलिए हुआ था कि ये कोड को इस तरह कन्वर्ट करे। वो लाइब्रेरी बनाने का मकसद ही यह था बेसिकली, ताकि लोगों को रिएक्ट यूज करने में आसानी हो। तो इसीलिए मेटा वालों ने ये लाइब्रेरी भी इंटीग्रेट किया कि बेसिकली यू कैन राइट कोड इन HTML लाइक सिंटैक्स, ऐसे डिक्लेरेटिव वे में आप कोड लिख सकते हो। एंड बेबल, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ना डायरेक्टली समझ में, जावास्क्रिप्ट को समझ में नहीं आता, यू नो HTML लाइक कोड, तो बेबल बेसिकली इसको कन्वर्ट करेगा। नो, दैट्स व्हाट बेबल डज। बेबल लाइब्रेरी बेसिकली ये कोड को लेगा, इंटरनली इसको ना रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसे करके कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एच टी एम एल लाइक कोड मैं बोल रहा हूँ, लाइक 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 करके वर्ड यूज कर रहा है। इफ यू रिमेम्बर, आपने अगर गौर किया होगा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप HTML लिख सकते हो, मैंने कहा कि HTML जैसा कोड लिख सकते हो। एंड द रीजन इज दिस कोड दैट आई एम हाईलाइटिंग, ये जो कोड मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये HTML नहीं है, इट्स JSX, HTML लाइक कोड। HTML की तरह दिखता है बट वो HTML है नहीं, उसको JSX बोलते हैं। तो यू गेट टू राइट JSX नाउ। अगर एक और क्वेश्चन भी होगा ऑब्वियसली कि ना JSX है क्या, मतलब इट्स अ एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट? थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया इन लोगों ने, और बता दिया कि ये भी जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड कर लो। ओके, जावास्क्रिप्ट का लेट्स से एक ये कंटेनर है, कुछ भी ले लो। ओके, यहाँ तक जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाता है बेसिकली, लेट्स से ये यहाँ तक खत्म हो जाता है, तो उन्होंने कुछ एक्सटेंड कर दिया, उसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर दी। वो JSX है बेसिकली, ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट कुछ और चीजें ऐड कर दी, उसको JSX बता दिया। ओके, सो इट्स अ एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट। तो फायदा क्या है इसका? बेसिकली जावास्क्रिप्ट में भी आप ये HTML की तरह कोड लिख पा रहे हो, इसको JSX सिंटैक्स बोलते हैं बस। तो व्हेन यू राइट दिस, आपका ब्राउजर जो है ना, ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट पता है। ये जो ब्राउजर है ना, क्रोम ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर, एक्सेट्रा ऑल द ब्राउजर्स, इनको जावास्क्रिप्ट पता है, करेक्ट? ये जावास्क्रिप्ट इंजन ही यूज करते हैं ना, यस और नो? इतना तो पता ही होगा ना आपको, ब्राउजर सारे जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करते हैं, तो उनको जावास्क्रिप्ट ही रन कराना आता है। जो ये एक्सटेंडेड पार्ट है ना, ये जो JSX, मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट में ऑन टॉप हमने ऐड किया, ये JSX बोलते हैं।
ये ब्राउजर को ये JSX समझ नहीं आता। ये जो एक्सटेंशन है ना, ये समझ नहीं आता उसको, ब्राउजर को। तो बेबल बेसिकली वही काम करता है। बेबल ना बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट में। ब्राउजर को तो जावास्क्रिप्ट समझ में आता है, तो इंटरनली कन्वर्ट कर देता है। एज ए यूजर मतलब मैं डेवलपर की तरह आराम से HTML की तरह या सिंपल सा कोड लिख सकता हूँ। हमारे को जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती है ना कोड लिखने में, डेवलपर एक्सपीरियंस बेटर हो गया है इसकी वजह से। एज अ डेवलपर मैं तो खुश हूँ, मुझे तो HTML की तरह ऐसे कोड लिखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम वो ब्राउजर जो जावास्क्रिप्ट नहीं समझ पा रहा था, उसको बेबल ने हैंडल कर लिया। दैट्स व्हाई बेबल इज यूज्ड। बेबल बेसिकली कन्वर्ट्स JSX into non-JSX code so that browser can also understand this. It's like a translator, yes. So ये JSX कोड को लेके ब्राउजर को ताकि समझ में आ जाए, इसलिए कन्वर्ट कर देगा इसको इंटरनली। ये इसको ना जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा सो दैट ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड स्टिल। समझ में आई बात? नाउ आई वांट यू टू डू वन थिंग। आप भी यू नो ये वाला टूल एक बार यूज करना, Babel. So if I share link, will you be able to access it? Give it a try. हाँ, तो ठीक है, ओपन करके यू ऑल्सो ट्राई सम ऑफ द स्टफ। ओके, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे ऐड समथिंग, इट्स नीड नॉट बी H1, कुछ और ऐड कर देना आप, एक डिव ऐड कर देना। ओके, एंड इसमें कुछ भी लिख देना, कार पे DM, एंड इसको ना एक क्लास नेम भी दे देते हैं, या कुछ भी दे देते हैं, क्लास इक्वल टू color, code, class name, ID equal to header, कुछ भी, and you can see how things are changing. React dot create element, div, properties and attributes में दोनों चीजें ऐड हो गई, चिल्ड्रन में carpe diem दिख रहा है। That's how Babel converts your JSX code into a code which browser can understand, which is basically JavaScript code. Okay, so I want you to also write it, but थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, we'll write something bigger. Let's say we have two three things here. H1 हो गया, जिसमें हम लोग कहेंगे car भेजिए. Okay, then we will add a p tag. We'll just say seize the day. Okay, so you can see two things here, carpe diem, seize the day. And if you have multiple things, तो multiple things add हो जाएंगे. But ये कैसे कन्वर्ट होता है? अगर इसको नॉन JSX कोड और जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ डज इट गेट एडेड? लेट्स चेक दैट आउट। से I put this here, you see this react dot create element. Okay, इसको थोड़ा सा we'll put it here so we can see JavaScript में. Yeah, I copied it, but हाँ, अब you can see over here div, okay, which is the case, properties and attributes are null, and then you have two elements, carpe diem, which is again one more element created. Children number two is p tag. तो अगर आप if you are able to use this, you will understand how things are changing. How Babel converts this JSX code into non-JSX code, which is JavaScript code. Make sense? ऐसे write even bigger one. Now your task is just that. Okay, create this, and you should have a div which should have let's say
let me give one simple problem. एक छोटा सा टास्क देता हूँ, और do you have any tasks here? Signed. No, no, you guys do this. There should be a div. It should have heading one, which says list of fruits, and it should contain a ordered list, and it should have multiple items in it. Okay, apple, mango, banana, uh, kiwi, mm, orange. Okay, so it should have this. It should have an image also. Image source can be any placeholder image. आपका जो मन करे, put an image there. Now I want you to do this. And ये करने के बाद, okay, this should all be inside div. Okay, right? So, okay, so this is what I want you to do. I'll give you 2 minutes for this. Okay. Once you're done doing this, I want you to take this JSX code, put it in Babel compiler, उसको convert भी करना, and see it, आपके अपने कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे put it and just observe. ओके, आर्ग्यूमेंट 1 पे div है, आर्ग्यूमेंट 2 पे क्या है, आर्ग्यूमेंट 3 पे क्या है, 4 पे क्या है. You'll get an understanding. Can you guys do this? Great. So yeah, to 9:45 we'll meet again. 3 minutes है आपके पास to do this. Okay. Have you guys been able to complete this? आपने complete किया है ये? हाँ जी. एक बार हम लोग क्विकली साथ में कर भी लेते हैं. तो what I'll do is, मैं यहाँ पे I'll just keep this. Let output और element लिख लेते हैं. Okay. div होना चाहिए. The div is there. List of fruits करके h1 में आना चाहिए. And ordered list होना चाहिए. Apple, mango, banana, kiwi, orange. And there should be an image. Source should be placeholder image. And there you go. It says header is not defined. यहाँ पे भी हमको चेंज करना है. हमने यहाँ पे element लिखा ना, तो हम ये element रेंडर करना चाहते हैं. एंड आ गया तीनों चीजें, इमेज, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड ऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल. क्रेजी राइट? तो इसके थोड़े बहुत निटिग्रिटीज से एक बार ना वो सारी चीजें देख लेते हैं. ओके, विल गो वन बाय वन. ओके, सो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया, 100% किया. ठीक है. सो यहाँ पे वी काइंड ऑफ डिस्कस दिस. ये भी डिस्कस कर लिया हमने. नाउ JSX एंड बेबल. ओके, ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग. बेबल क्या करता है? इट कन्वर्ट्स JSX कोड इनटू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट. क्यों करता है? बिकॉज ब्राउजर्स को JSX समझ नहीं आता. हम सारा जिंदगी ब्राउजर पे ही काम करते हैं, राइट? तो इन ऑर्डर टू मेक ब्राउजर अंडरस्टैंड माई कोड, मैं बेबल का हेल्प लेता हूँ. रिएक्ट के पास बहुत सारे फ्रेंड्स है दैट हेल्प्स रिएक्ट. दैट्स व्हाई रिएक्ट इज वेरी पॉपुलर. तो कोड इम्प्लीमेंटेशन में वी काइंड ऑफ डिड दिस.
अभी वी विल टॉक अबाउट JSX के प्रॉप्स एट्रीब्यूट सारी चीजें, ओके, एक करके एक सारे। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। इंटरपोलेशन मतलब क्या है अभी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरपोलेशन पार्ट, ओके। मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ कि आफ्टर द सेशन यू नो एग्जैक्टली वेयर टू गो, वेयर टू लुक एट, ओके, बिकॉज इंटरव्यू में यू विल हैव टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो read after the session is completed. That's what I'm trying to say. Let's come back to this. Interpolation मतलब what do I do? कुछ वेरिएबल है, लेट्स से सम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है, उसका नाम ही मैं सम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल रखता हूँ, ठीक है। तो सम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, इसका वैल्यू लेट्स पुट समथिंग सम स्ट्रिंग, कुछ भी, व्हाटएवर। नाउ ये जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, इफ आई वांट टू पुट इनसाइड माय JSX, जैसे आप टेम्पलेट लिटरल में, सो टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग लिखते हो ना आप, इस तरह किया होगा आपने, राइट? ES6 लिखते वक्त किया होगा ना। तो आप क्या करते हो, ये डॉलर सिंबल करके ऐसे इसमें जोड़ देते हो, राइट? यू इंटरपोलेट दिस वेरिएबल इन योर स्ट्रिंग लाइक दिस, यस और नो? तो उसी तरह इफ यू वांट टू इंटरपोलेट दिस वेरिएबल इनसाइड JSX, okay, now how do you do that? Very simple. यहाँ पे भी you will do the same thing. Let's say p tag है, hello, I'll put some variable here, and if I want to put this, I'll just have to put curly braces and add some JavaScript variable there, and you can see that some string part. You see this? The variable is here. So you don't even put that dollar symbol or anything, just curly braces, and usme you can put a variable. So if you know about template literal, if you have experimented with it, okay. So hello, or why am I adding hello to everything? Add one and two. So if I do this one plus two, if I put some JavaScript expression, you see this one and two add करने पे, instead of one plus two, it was able to add it and display it, right? It was able to calculate that expression. तो same चीज यहाँ पे भी you can do. If I do one plus two, it's not a number. I haven't removed this. So you see, when you removed it, and yeah, it is able to evaluate expressions. You getting my point, right? तो इसकी जगह, वेरिएबल की जगह, लेट्स से देयर इज अ फंक्शन, कुछ भी फंक्शन फू, ये फंक्शन का नाम हमने रख दिया क्या, फू, एंड दिस फंक्शन इज रिटर्निंग बार, एंड इफ आई replace this and invoke foo here, you see I'm able to, it's returning that bar string. So आप function भी invoke कर सकते हो इसमें, but should return something. You know, 1 plus 2 returns 3. Who returns bar? But if you put console log, you can't see anything, obviously, right? Expression or function which returns something, that you can put over here and it evaluates it. Similar to that same template literal. So you can do interpolation as well. Okay. Self closing tag. ये क्या चीज है? Uh, quickly, I want to create an HTML template. Image MDN. इमेज टैग कैसे लिखते हैं हम लोग? ओके, तो इस तरह कुछ हम इमेज टैग लिखते हैं, राइट? इफ आई पुट दिस ओवर हियर एंड इफ आई रिमूव दिस,
and put some placeholder image. हमने placeholder image है ना हमारे पास. So if I put that placeholder image over here, run it, it should display that, right? ठीक है. अभी ये tag को if I remove this and run it, HTML फिर भी काम कर रहा है, right? इसको मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं दिया यहाँ पे. सी, ये जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो मैंने नहीं दिया, तभी वो अच्छा खासा काम कर रहा है. बट रिएक्ट एलिमेंट वैसे नहीं काम करेगा. इफ आई शो यू दिस, देखो एग्जाम्पल 3 में, इफ आई रिमूव दिस सेल्फ क्लोजिंग टैग, वो फट जाएगा आपका कोड. ओके, तो इट्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट सेल्फ क्लोजिंग टैग. आपको ऐड करना ही है. जैसे HTML में आप अगर ना करें तो भी चलता है, यहाँ पे नहीं चलता. यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा टैग प्रॉपरली. अगर ब्रेक, लाइन ब्रेक करना है आपको, बेसिकली यू पुट अ स्पेस इन बिटवीन लाइंस, राइट? तो आपको उसको भी सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड करना पड़ेगा. HTML में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. हॉरिजॉन्टल रूल अगर आप ऐड करोगे, विच इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको वो सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड करना है. ओके, दैट्स वन थिंग. Event handlers. Okay, so what is that? Let's try to understand. Okay, everybody clear till this point? जितना मैंने समझाया इतना क्लियर है? परफेक्ट. सो एक बटन ऐड करते हैं हम लोग. ओके, ये बटन ना क्लिक मी करेगा. बटन ऐड हो गया हमारा. ओके, सो HTML में लेट्स से एक अलर्ट देना है ना, जब भी ये बटन क्लिक होगा तो वी विल कॉल अ फंक्शन और बटन क्लिक्ड. एक फंक्शन है बटन क्लिक्ड करके, विल कॉल दैट फंक्शन which will basically, let's say, alert or console log button clicked. Okay, everybody clear with this? एक बटन है, क्लिक मी टेक्स्ट है उसका. जब ये बटन क्लिक होगा तो अपने को एक अलर्ट आना चाहिए which should say button clicked. Okay, as simple as that. So how do you write it in HTML? Okay, let's see. HTML में हम कुछ इस तरह लिख देते हैं, right? So we used to write a button, web button click me, and JavaScript we have a function button click. I'll just copy this. I'm too lazy to write. तो ठीक है, यहाँ पे will just copy this, and if I wanna click on click, so ये on click functionality which will basically call the function button clicked. When I run this, you'll see that button over there. तो ये बटन पे क्लिक करने पे you used to get that alert. HTML में आप इसी तरह लिखते थे, right? All right. Now I'll try and do that same thing, right? हमने तो HTML लाइक कोड करके बोल रहे थे ना, तो हमने इसी तरह किया यहाँ पे ऑन क्लिक करके, बटन क्लिक करके we wrote it. We'll see whether it works or not. Well, I'm clicking, it's not working. So fundamentally there are certain differences. JSX और HTML similar है but same नहीं है. Okay, I'll repeat myself again. It's similar but not exactly same. So there are some changes that are there in JSX. Okay. One of the thing is that if you want to add a click event handler, you can't do it this way. As a on click करके, you can't write it. Okay. इसका there's a small change. We'll try to understand that also. इसको let's say comment it out. The one that didn't work. Okay. Uh,
So even if I have to comment out, I've got to use curly brace and ऐसे comment करना होगा. So if I do this, multi-line comment, and then I can add this button here. Okay, so let's come here and you see this. Okay, let me remove this. So instead of on click, it's capital camel casing करना पड़ेगा आपको. And instead of this invocation, you would have to pass the reference to that function. Button click करके curly brace डाल के here you need to pass the reference to that function, which is button click. Now when you do this, it will work. See, it's working. Initially, you will feel, अच्छा fine, how do I know all the things? एक छोटा सा hack है, till you get habituated to JSX, okay? जो जितना टाइम नहीं लगता, basically 2-3 days के लिए, till you get accustomed to it. यहाँ पे if you go, okay, resources में लास्ट में, मतलब आपके नोट्स के सबसे लास्ट में ये एक टूल है HTML to JSX कन्वर्टर. तो ये बेसिकली आप कुछ भी कोड HTML में लिखो, जैसे कि ये कोड हमने HTML में लिखा था, राइट? तो ये कोड अगर मैं HTML में लिखूं तो इट इज कन्वर्टिंग, बट दिस इज रॉन्ग अगेन. बाकी सब चीजों के लिए काम आ जाएगा, जैसे H1 हो गया, या फिर इमेज हो गया, it's able to convert, source equal to some source. It added that additional you know tag, self closing tag वगैरह. But ये एक इवेंट हैंडलर के मामले में you'll have to be a little careful. But because if you see over here again, at the end of the day वो किसी और का product है, you cannot trust it blindly. So it still says कि if you do button click ऐसे it will work, but it won't work. So you have to first of all write camel case all the things. Okay, अगर मेरे को class लिखना है, p tag में if I have to write class equal to some class name, you might feel that you can write it, and there is a problem again here. You cannot write class, you have to write class name. JavaScript mein, if you remember, class is a keyword, so you cannot reuse it. You have to write class name because you are inside JavaScript at the end of the day. ये HTML नहीं है, thick HTML की तरह रहा है. It's looking like HTML, but it's not. It's JavaScript, right? You are in JavaScript land. जब आप जावास्क्रिप्ट लैंड में रहोगे तो आप उसको क्लास नहीं बुलाओगे, इसको क्लास नेम बुलाओगे. ओके, सिमिलरली ऑन क्लिक ऐसे नहीं लिखते, ऑन क्लिक को कैमल केस करोगे आप. ओके, एंड यू पास द रेफरेंस, कर्ली ब्रेस करके यू पास द रेफरेंस. दैट्स हाउ सिंटैक्स इज. सो अगेन इट कम्स विद प्रैक्टिस, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना एंड गो थ्रू इट, आपको समझ में आ जाएगा. एक एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें मेंशन की हुई है, so shouldn't take that long. Okay, so ये उतना important नहीं है, but still have a look at it. It's just सारी चीजों को we just wrote props, and basically what they're doing is here button में एक हो गया ये on click property जो हमने ऐड की, right, which is basically allowing you to invoke this function called button click. Let's say ये बटन को ना एक ID भी है. ओके, इसका ना एक क्लास नेम भी है, सम क्लास नेम. ओके, कुछ आईडीज प्रॉपर्टीज सारी हैं. तो व्हाट इज बीइंग सेड ओवर हियर इज के इसको इफ यू वांट, एक सिंपल सा सिंटैक्स है wherein you can एलिमेंट के आउटसाइड में लेट्स से प्रॉपर्टीज करके लिख के you can put all these here like this, object की तरह you can just create. Will be one property, and class name will be another property, and the third one is on click, uh, which is again one more property. And ये properties करके instead of all of this
you can just spread properties ऐसे, and if you hover, if you click, it still works. अगर आप ये बटन को इंस्पेक्ट करोगे तो वो सारी चीजें आपको वहां पे भी दिखाई देगी. You observe over here. uh, okay, just give me a sec. Let's inspect. Click on inspect, and yeah, there you go. ID, special button, and all these properties and attributes are added. तो ये spread operator है. If you don't know what a spread operator is, I would highly recommend that you have a look at it. It's a JavaScript thing, but ये बोल रहा है कि you can have spread operators also written in this way. But even if you don't understand, you can still do React. It's not, you can't, but that doesn't mean that you shouldn't learn or anything. You should learn it, understand what is, this. And the reason why you need to know all of these things is, one thing people say is कि मैं तो ये यूज नहीं करूंगा, तो why should I learn? ये mentality भी होती है, right? Like when I have to use spread operator or rest operator, I'll stick with some ancient method. That way I can avoid it. But the problem is that you don't work in just on your own when you move to an organization. So you work with team. Team has other people and they tend to write code like this. And you should be able to understand the standards basically. JavaScript में बहुत सारा ES6 use होता है. So you should learn ES6 if you haven't. Okay. All right, it's 10 o'clock. Oh, sorry. It is 10 o'clock, but still I'll continue. Okay. So be okay with it. Okay. I'll I have a very bad habit. I like to cover things. Okay, if no, my students ask some queries, I'll answer it, and if it takes a little longer than that, be okay with it for next 3 weeks. Okay, it is what it is. Uh, so yeah, I mean sometimes it may take 10:15 also or 10:30 also. Just be okay with it. Okay. I'll try to complete it by 10:15 or less than that, but still, just be okay with it. Only when it is required, I'll try to. It's not that I want to, it's just that sometimes I have to. Okay. So we already saw this rendering multiple elements. So we are rendering multiple elements anyway by using div. Okay. Now, what is this react.fragment? We'll try to understand. यहाँ पे oh, why is this? Just give me a second. Can I close this? Why am I not able to drag it down? Anyway, okay. So I'm not able to for some reason, but let's increase this size. Why? Okay, so it's gone. Okay, so I want you to show something like this list of fruits that you see. Okay, so yeah, it gets converted to DOM element and you have this div, right? ये div के अंदर you can see this list of fruits, this ordered list that we have done, this image, and this p tag, and this button. Okay, so this div is an additional div that we are adding inside div with id root. आपको पता चल रहा है ना अभी where is it coming from? Like you see this div with id root. सारा react यहाँ पे इसके इसके पेट में होता है ये div जो है ना with id root. React application lives here. आपका जो React एप्लीकेशन है ये div with id root वाले के पेट में होता है. सब इसी के चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली. So what I want, what I'm trying to show you is this. ये जो div with id root है ये आपका root element है.
जिसके अंदर एक और div है, राइट? वो कहाँ से आया? ये जो एडिशनल div आपने क्रिएट किया यहाँ पे लाइन नंबर 39 पे, इफ यू सी, आपने एक एडिशनल div क्रिएट किया था, राइट? दिस वन। बिकॉज आपको ये सारे एलिमेंट्स रखने थे। क्या होगा अगर मैं ये नहीं क्रिएट करूंगा तो? okay? मैं अगर ये div नहीं क्रिएट करूंगा, मेरे को बस सारे एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो सडनली मेरा एप्लीकेशन फट गया, इट्स नॉट वर्किंग। ये कुछ बोल रहा है कि adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag, ऐसे ऐसे करके कुछ बोल रहा है। तो ये कंटेनर की तरह एक्ट कर रहा है। ये लाइन नंबर 39 पे जो div है ना, ये एक बॉटल की तरह एक्ट कर रहा है, जिसमें आप ना अपना कोका कोला और पेप्सी और वॉट एवर ड्रिंक दैट यू पुटिंग आपने डाल रखा है। अगर वो कंटेनर ना हो तो सारा लिक्विड स्पिल्स आउट। सो these react elements, they need one container element, वरना ये नहीं टिकते। लिक्विड को आप बिना किसी कंटेनर के रख सकते हो? कैन यू डू दैट? नहीं। उसी तरह समझ लेना कि रिएक्ट के जो ये एलिमेंट्स है, इसको एक कंटेनर चाहिए। कोई भी एक डिव ही लगा दो, बट ये बोलता है कि आप इसको आउटसाइड ऐसे नहीं रखना। कल हम लोग इसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्यों ऐसे है, विच इज वेरी इजी। आई अगर मैं 5 मिनट आपको दूं सेशन के स्टार्ट में, एंड इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन दैट, विल बी वेरी मच फन। बट वेरी इजी है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ही है, वॉट एवर यू नो। बट just remember that in order to put all the JSX elements, you have to have a container. अब ये कंटेनर एक div लगा दिया हमने तो everything is working fine। अगर div नहीं लगाया तो कोड फटने लगेगा। Now this is an additional div that you're creating। ये div with id root के अंदर एक और additional div मेरे को क्रिएट करना पड़ा, just for one purpose, कि ये सारे एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हों, ताकि वो मेरा थम्स अप कंप्लीटली फ्लोर में ना स्पिल हो जाए, rather it stays in that bottle itself। For that reason I am creating this additional div। But what if I don't want this div? मेरे को वो div नहीं चाहिए, an additional div ये जो ऐड हुआ है ना, मेरे को ये सारे एलिमेंट्स एक ही जगह चाहिए इकट्ठे, बट एट द सेम टाइम मेरे को वो div एक्स्ट्रा एडिशनल div नहीं चाहिए डॉम पे। तो इफ दैट इज द केस, ये एक्सेस के आप ना इसकी जगह रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करके एक चीज है मेरे पास, उसको यूज कर लो। वो कंटेनर की तरह हैक करेगा और एक एडिशनल div भी नहीं क्रिएट करेगा। नाउ div विद आईडी रूट में डायरेक्टली है सारी एलिमेंट्स इकट्ठे, h1 ol इमेज p टैग बटन एक्सेट्रा। ये एडिशनल div नहीं क्रिएट कर रहा। इसी div विद आईडी रूट डायरेक्टली उसके अंदर ना लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है, डायरेक्टली ऑर्डर्ड लिस्ट है, डायरेक्टली इमेज है, डायरेक्टली p टैग है। इट्स नॉट क्रिएटिंग एन एडिशनल div। इसी को फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, एंड रिएक्ट ऑफर्स इट। इसका एक शॉर्टकट है, बहुत इजी है। मतलब इसका एक और शॉर्टकट ये है कि इसको ना कंप्लीटली रिमूव ही कर दो, ऐसे एंगुलर वो डिव जो था उसको रिमूव कर दिया, ऐसे लिख दिया बस, दैट आल्सो वर्क्स। अभी देखो डिव विद आईडी रूट डायरेक्टली उसके अंदर वी हैव दिस h1 o ordered list etc. These are called fragments, you can read about it here। Okay, so that's basically how you can render multiple elements। inline styling, okay, inline styling कैसे करते हैं हम लोग जनरली? उसके लिए बहुत सिंपल सा वे है टू एक्सप्लेन इट टू यू। वो जो HTML2 JSX वाला कोड है ना, उसी को यूज करके बताता हूँ। बहुत सिंपल से वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इफ आई डू, अरे भाई इज इट नॉट मूविंग? ठीक है। सो लेट्स से देयर इज अ div and it has some content inside of it। Okay, so HTML में this is how you would write। And let's say if I want to style this using inline styling, I'll do style tag style equal to
ऐसे लिखेंगे एंड देन वी डू पैडिंग 20 पिक्सल, margin, whoops, margin 20 pixel, and color, text color should be green, and background color should be uh, white smoke. Huh. So yeah, I need to close this string. Okay. So चार properties मैंने ऐड की, padding, margin, and color and background color. And you can see how it has converted. JSX में this string got converted into an object. Style करके एक object बन गया. Okay, so this is that JavaScript object. So we are interpolating it. So we are adding an additional curve, additional curly brace. The first वाला curly brace जो आपको additional दिख रहा है वो interpolation की वजह से. What do I mean by interpolation? ये जो हमने ऐड किया ना, तो ये JSX लैंड है, उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऐड कर रहे हैं, तो हमने इंटरपोलेशन यूज किया, राइट? वी एडेड दिस कर्ली ब्रेस, जैसे टेम्पलेट लिटरल में डॉलर सिंबल के साथ होता है, राइट? तो ये जो आउटर वाला स्टाइल कलर ये जो दिख रहा है ना, ये इंटरपोलेशन वाला कर्ली ब्रेस है, ये इनसाइड का ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है. सो ये स्ट्रिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. तो JSX सिंटैक्स में कुछ इस तरह लिखोगे आप. तो इट्स फाइन, लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट के डे वन ही आपको इजीली JSX में आप कन्वर्ट करना शुरू कर दो. इवन इफ दैट इज नॉट द केस, जब आप ये टूल कंटिन्यूसली यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इन 2-3 days नो यू डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग. बट तब तक के लिए स्टिल यूज दिस टूल, विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल, हम लोग बैकग्राउंड कलर इस तरह लिखते हैं ना HTML में, बैकग्राउंड कलर, बट यहाँ पे इट गेट्स कन्वर्टेड टू कैमल केस. यार मेरा माइक गिर गया था, सॉरी, 1 सेकंड के लिए. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज यू राइट बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, करेक्ट? बैकग्राउंड हाइफन कलर, इसको कबाब केस कहते हैं. तो JSX में जब कन्वर्ट होगा तो इट बिकम्स कैमल केसिंग. But anyway, for anything wherein you are trying to understand how to write an HTML code into JSX code, pretty much similar ही रहेगा, but still I would say एक बार ये tool में check कर लेना, you'll get a better idea. That's an easy approach. Now, coming back to this. हाँ, इतना ही है. Pretty much I covered everything basically. ये थोड़े से ना स्टूडेंट एक्टिविटीज ये जो लास्ट में दिख रहे हैं ना, दिस वन, द लास्ट वाले, अभी सेशन अभी खत्म होने वाला है, राइट? आई विल स्टॉप द सेशन नाउ, बट ये ट्राई करना पक्का. सो ये 2-3 छोटे से एक्टिविटीज है, ट्राई दिस आउट, you'll गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड असाइनमेंट्स कर लेना. विल मीट टुमारो. ओके, we'll discuss more and more. We'll try to understand some interesting stuff about React. आज के लिए we'll stop here and let's meet tomorrow. But you know, go through it, go through the notes especially. Okay. All right. I hope this session was helpful. Uh, Thank you so much. If I see some queries, I'll quickly answer that and then we'll wrap it up. Okay. कोड सही लिखने के बाद भी रेफरेंस शो कर रहा है, रिएक्ट डॉम इज नॉट डिफाइंड शो कर रहा है स्क्रिप्ट लिखने के बाद. सो इट्स बिकॉज यू माइट नॉट हैव एडेड रिएक्ट डॉम. आपने ये वाला लाइब्रेरी ऐड नहीं किया. वो रेफरेंस एरर इसलिए बताता है कि वो बोल रहा है कि तुमने जो रिएक्ट डॉम करके लिखा है, मेरे को वो चीज क्या है पता नहीं है. तो ये जावास्क्रिप्ट इसलिए चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे रिएक्ट डॉम क्या है मेरे को पता नहीं है. दैट मीन्स दैट यू हैवंट इंपोर्टेड द लाइब्रेरी प्रॉपर्ली.
सीडीएन लिंक या तो आपने इंपोर्ट नहीं किया, या तो आपने रिएक्ट डॉम प्रॉपरली लिखा नहीं है। रिएक्ट डॉम इस तरह लिखना होगा आपको। आपने ना डी स्मॉल ओ स्मॉल एम लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। सो दैट मैटर्स। ऑल राइट, cool. uh, so yeah, I'll stop sharing.